हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी. Our constitution is granted to be the citizen of India is a set of six freedoms described as a right to freedom. There is a right to freedom. There is six. Here the six here fundamental freedom here. The constitution granted the following six fundamental freedom. The first here freedom to speech and expression. Second here freedom of assemble peacefully without any arms. And third here a freedom to association as a union. And freedom to move freely throughout the territory of India. And the next year, freedom to reside and settle in any part of territory of India. And last year, freedom to practice any profession to carry on the occupation, trade or business. There is the most important. Let's study this fundamental only one very note here. First here, freedom of speech and expression. What do you mean to freedom of speech and freedom here? It is an important freedom. This is a freedom ensure the free and frank speech, discussions and exchange of opinions. It's include the freedom of press. However, this is a freedom like a freedom of speech and expression are not to be assaulted. And the state is empowered to impose the reasonable and restriction on the exercise of this right in the interest of security of the state, public order, and morality, etc. And there is one most important fact in this box. The freedom can be suspended during the state of nation emergency. There is a most important fact here. The state is freedoms is suspended regarding to the state of national emergency. As soon as the state national emergency is declared under Article 352, the above mentioned freedom expect the right to a life, liberty, automatically is remain suspended. As along the state of national emergency is countries is a continue, all this is a freedom get restored as soon as the proclamations of national emergency lifted. The next year of protection in the respect of conviction of the on offense. This is a constitutional is a provision ensure the protection against the arbitraries arrest in the scheme of punishment to any person who is illegal to behave a community as often. No person shall be punished except from the violation of law, which is the force which the crime as a committed. As accused is a cannot be is a compelled to be a witness against him and herself. No person shall be punished from same offense more than once. The next is the protection of life and personal liberty. There is the constitution is laid down that no person shall be deprived of his hair. Life is a personal liberty expected according to the procedure established by law. It is a grant is that life or personal liberty shall not be taken away or without the sections of law. They ensure that no person can be punished or imprisoned of a merit at the whims of some authorities. He, she may be punished only for the violations of the law. And the next year, prevention against to the is a arbitrary arrest and detentions. Our constitution grants a sentence right to be arrest person as a per the provision. No person can be arrested and are be detained in the custody without being to inform the ground of detentions. He, she has the right to the counsel and the defended by their lawyers of his ear or voice. This assumes they has to the produce before the nearest as a magistrate and within a period of 24 hours of arrest. This is a safety guard, however, are not to be available for the foreigner as well as the host citizens under to the Preventive Detection Act. The Preventive Detection Act here, and when the state feels that is a person is likely to the commute is a crime or threat of the security of the state, he seems may be denied to the without trial of a limit period. However, no person can be kept under detentions for more than 3 months until permitted by a advisory board and constitutional persons who are the qualified to be appointment to judge of high court. Such
A board is presided over to a sitting a judge of High Court. And the last is the right to the education. By the 86th Amendment Act of the Constitution, as a new Article 21A has been added after Article 21. By this amendments, Act right to the education has been to the made of fundamental right and has been to deleted from to the list of directive or principle of state of policy. According to it, the state shall be provide free and compulsory education to all children of this age, say, and the 6 of 14 in such a manner as the state may be law or determined. It is a further state that it is the responsibility of the parents or guardian to provide to the opportunity for the education to their child or ward between to the age of 6 or 14 years. दोस्तों हमारा जैसे कि दूसरा राइट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें सभी स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी जाती है। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं होती है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 6 गारंटी की, तो वो 6 गारंटी कौन कौन से हैं ये जानना रोचक होगा। देखिए हमारे समक्ष 6 जो है अधिकार आ चुके हैं जिसको आपको अपना कॉपी पे भी नोट डाउन करने हैं। कहते हैं अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो शायद एग्जाम तक आपको नहीं मिल पाएगा। आप ये वीडियो देख भी रहे होगे, फिर भी पता बाद में अगर रिसर्च करो तो शायद ना भी मिले, तो आपको टेंशन का सबब बन सकता है। तभी मैं हमेशा यही बात कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ये फ़ायदे में रहोगे। यहाँ पर हर तरह के वीडियो आपको मिलेगा, वो भी आपके अपने लैंग्वेज में, अपने समझ के लिए। तो सोचना नहीं होता है दोस्तों, सब्सक्राइब करके सेव करना ही समझदारी वाली बात आती है। चलिए ये तो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ये आपके विवेक के ऊपर आश्रित है। हम देखते हैं हमारा 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमारे समझ आता है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भाषण देने की स्वतंत्रता मिल जाती है। बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता इसमें रहती है। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त दी गई है। अब भारत में कहीं भी स्वतंत्रता रूप से जाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, पहले जो था जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो है 370 धारा हटा दिया गया है, जो आप वहाँ पर भी आप जा सकते हो। कहते हैं उसके बाद भारत के किसी भी भाग में रहने व जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता थी उस समय। किसी भी कार्य, व्यापार और व्यवसाय, नौकरी करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब चलिए देखते हैं हम इसको संक्षिप्त में, ठीक है, क्या क्या इसमें वर्णित। सबसे पहले हमारे समक्ष तो यही आता है भाषण तथा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। कहते हैं ये एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने, वाद विवाद करने तथा विचारों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। हालांकि ये स्वतंत्रता जैसे भाषण तथा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता असीम नहीं है। राज्य को सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता इत्यादि के हित में इस प्रकार का प्रयोग पर जो है उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। कहते हैं अगर न्यूज़ वाले अगर किसी के अधीन हो जाते हैं तो वो देश जो है लोकतांत्रिक नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार की ही इच्छाओं से न्यूज़ चलने लगते हैं। तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेस को स्वतंत्रता रहना इसके अंतर्गत आता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो ये बात यहाँ पर क्लियर दी गई है कि स्वतंत्रता हमारी कब खत्म हो जाती है। कहते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान इन स्वतंत्रताओं को जो है निलंबित किया जा सकता है। अगर कभी हमारे देश में कोई आपातकालीन आ जाता है तो आपको बहुत सी स्वतंत्रता को जो है नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस में आपकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दी गई थी, आपको घर में कैद कर दिया गया था। तो उस समय जो था आपकी स्वतंत्रता बाधित हुई थी। जो ही धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती है तो ऊपर वर्णित सभी अधिकार जो है सिवाय जीवित रहने की स्वतंत्रता को छोड़कर स्वयं ही आपातकाल जारी रहने पर निरस्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यानी सिर्फ आप जीवित रहते हो, कैसे कंडीशन में रहते हो, सिर्फ यही आपके पास बचेगा, बाकी हर एक जो है कंडीशन आपको खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्र में आपातकालीन घोषणा होगी तब इस तरह के जो है कंडीशन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ हद तक आपने कोरोना वायरस में भी इस घटना को देख रहे होंगे। जो ही आपातकाल समाप्त होने की घोषणा होती है सारी स्वतंत्रता फिर से लागू हमारे ऊपर हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा। कहते हैं यह संवैधानिक प्रावधान किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध में अभिव्यक्त है उसकी जो है मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी एवं
उत्तराधिकारी सजा के विरुद्ध जो है सुरक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय सजा नहीं दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप देखते हो फिल्मों में भी कोर्टों में जो है झूठे गवाह प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये बात अगर कोर्ट को पता लगता है तो झूठी गवाह पेश करने के जो है इसके भी सजा वहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये भी आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि हम अपराध तो एक बार कर चुके हैं तो इसका हमें 2 बार सजा नहीं मिलेगा। तो कहते हैं हमें अपराध करना ही नहीं चाहिए जो हमारे देश के लिए और हमारे परिवार के लिए जो है सबब बन जाए। उसके पश्चात हमारे समक्ष जीवन तथा वैश्विकता स्वतंत्रता की सुरक्षा। कहते हैं संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। यह गारंटी देता है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना कानून के इजाज़त के छीने भी नहीं जा सकते हैं। यह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को केवल कुछ संघीय अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सजा को भी जो है रक्षा सुनिश्चित करती है। वो केवल कानूनी उल्लंघन के लिए ही सजा पा सकता है, यानी कानून के उल्लंघन करते हैं तो सजा दी जा सकती है, अदरवाइज कोई व्यक्ति किसी को सजा देना कानूनी अपराध माना गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक। देखिए ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि हमारा संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निश्चित अधिकार देता है। कहते प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति बंदी बनने जाने के कारण बताए बिना गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार करना है तो पहले आपको गिरफ्तारी के वारंट लेके आना पड़ेगा, नहीं तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना बताए आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना कानून के अपराध में है। उसे अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील की राय ले सकता है अथवा मुकदमा लड़ सकता है। अभिव्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकट दंड अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी की जाती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी औरत को हम अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए एक औरत कांस्टेबल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमारे समाज में होता ही नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे? संविधान में जो लिखी है उस बात को तो हम मान्यता मानेंगे, लेकिन कहते हैं बहुत से कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को खंडित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इवन कि जो कहते हैं कानून की रक्षा करने वाले ही इन रूल रेगुलेशन का धज्जियां उड़ाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत बातें जो है सोच विचार के और गहराई से यहाँ पर दी गई है। हालांकि रक्षा के उपाय विदेशियों तथा अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। इसमें एक और बात आती है कि बंदी निवारक का अर्थ क्या है। देखिए, बंदी निवारक हमारे यहाँ वर्ड आया था तो उसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक भी रहेगा, क्योंकि जब राज्य को यह अनुमति हो कि किसी व्यक्ति जो अपराध करने वाला हो, राज्य की सुरक्षा खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रहे हो, तो राज्य उसी सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। ठीक है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस बंदी कानून के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय के जज होने की योग्यता रखते हो, उनकी अनुमति मिली हो। ऐसी समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश द्वारा होती है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर देश को खतरा में डालता है तो उसके प्रति कोई भी वारंट निकालने की जरूरत नहीं होता, उसको जो है गिरफ्तार करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो देश के लिए खतरा का सबब बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेना ही न्याय उचित मानी जाती है और लोगों की सुरक्षा भी इसी में निहित भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष शिक्षा का अधिकार। कहते हैं संविधान के 66वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नई धारा जो जुड़ी थी 21(1) को धारा 21 को बाद जोड़ा गया था। हमारा पहले 21 धारा था जिसमें शिक्षा का अधिकार था, लेकिन 21(a) में जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया। इस जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की सूची से इसे हटा दिया गया। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करना होगा। आगे यह कहा भी गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का, अभिभावक की
जिम्मेदारी होती है और ये जरूरी भी है किसी भी व्यक्ति को बाल जो है श्रम नहीं करवाया जाए, उनको शिक्षा पर महत्वपूर्ण जो है अपना भागीदारी निभाने की जरूरत है। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो बाल मजदूरी हद से अधिक है, लेकिन फिर भी ये कानून जो है बहुत काफ़ी अच्छा है कि हर एक बच्चे को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो 6 साल से 14 वर्ष के अंतराल में ही क्यों ना हो। कहते हैं अगर 6 से 14 वर्ष के अंतराल में बच्चे अगर सुचारू रूप से पढ़ ले तो ये देश के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हमारा विडंबना यही होता है कि हमारे कहते हैं कानून में हर एक बात की जो है सुचारू रूप से वर्णन है और अच्छे यहाँ पर बताई भी गई है, लेकिन फिर भी जो है इसका अमल नहीं हो पाता है, जो बहुत बड़ी विडंबना के रूप में हमारे समक्ष खड़ा है। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं देश के भलाई के लिए तो जरूरी भी है। दोस्तों कहते हैं इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसका अगर तीसरा जो पार्ट होगा, तीसरा में जो हम तीसरा अधिकार के बारे में बात करेंगे वो अगले वीडियो में होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि इसको दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुँचाने के लिए आपको अग्रसर होना है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देना है। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे थे और मेरे और वीडियो का जो है समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप रिसर्च करोगे सोचोगे कि ये त्रिपाण सेंटर का जो है आ जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो सबसे पहले नहीं आएगा। पहले वो वीडियो आएंगे जो कई सालों से चल रहे हैं, ठीक है। कहते हैं वो चल रहे थे, चलने दीजिए, लेकिन जहाँ से आपको समझ में आता है वही आपके लिए अच्छा भी होता है। देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लेने से ये होता है कि ये वीडियो आपके जो है सब्सक्राइब होने से वो जो होता है चैनल में सेव हो जाता है। अब वहाँ पर कोई भी वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हो कि सारे वीडियो आपको नज़र आएंगे, एक लाइन से आएंगे। तो इससे क्या होता है, कोई भी वीडियो आपके लिए जरूरी है उसको कैसे भी कर, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस पे इसको शो कर सकते हो या व्हाट्सअप पे किसी बच्चे को सेंड करके भी सेव कर सकते हो। तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उसको फटाक से आप देख लोगे और आपको जो है पूरा नॉलेज आ जाएगा और एग्ज़ाम आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लोगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना भी चैनल को ज़रूरी होता है।